निजी स्कूल और सरकारी स्कूल से संबंधित समस्याओं पे आज बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि पिछले 2 साल में, कोरोना काल में, देश भर के सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहे। प्राइवेट स्कूल्स में तो ऑनलाइन कहने को कुछ एजुकेशन हुआ, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में टोटली पढ़ाई ठप रही। प्राइवेट स्कूल में पेरेंट्स फीस नहीं दे पाए क्योंकि उनकी आमदनी बहुत ज़्यादा गिरी और उन्होंने, बहुत पेरेंट्स ने अपने बच्चे भी प्राइवेट स्कूल से विड्रॉ करे और गवर्नमेंट स्कूल में डाले। उधर गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट हुआ और चाइल्ड लेबर जो है उसकी संख्या बढ़ी। अभी पिछले 2 दिन में कुछ न्यूज़ रिपोर्ट हुई हैं, मैं आपके नज़र में लाता हूं और फिर हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक खबर है डेक्कन हेरल्ड की आज की, जिसका हेडिंग है सेवरल टॉप स्कूल्स इन हैदराबाद हाइक फीस बाय 30%। इसमें जो न्यूज़ रिपोर्ट है वो ये कहती है, several prominent private schools in city have hiked tuition fees by 30%, adding to the woes of parents. Many parents alleged that schools have been increasing 10,000 rupees every year. Even though they reduced the fee during the COVID-19 second wave, the fee has gradually been brought back to the previous level. Some schools have compelled payment of fees by 15th of every month, failing which would result in termination of all academic facilities. दूसरी तरफ इसके अंदर जो प्राइवेट स्कूल्स के जो मैनेजमेंट्स हैं, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है, मैं पढ़ता हूं। Meanwhile, principals of private and international schools state that their expenditure have increased even as revenues fell as extra supplies for online education had to be arranged. Basic training has to be provided for teachers and we had to buy material required to abide by COVID protocol, and salaries to teachers have gone over the roof. Thousands of schools have not survived as they were unable to afford it. Parents need to understand our plight, said the principal of an international school. There was no help from the government in any manner. It did not even reduce property taxes, he concluded. तो इसमें मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश की बात की गई है। वहाँ पर पेरेंट्स का कहना है कि 30% फीस जो है बढ़ा दी है और धमकी मिल रही है कि अगर फीस जमा नहीं की तो बच्चों को जो है एक तरीके से स्कूल से ही निकाल देंगे। दूसरी तरफ स्कूल मैनेजमेंट्स अपना आर्गुमेंट दे रहे हैं कि खर्चे बहुत बढ़ गए हैं और सरकार उनकी कोई मदद नहीं करती है, तो इसलिए उनको मजबूरन जो है फीस बढ़ानी पड़ रही है। एक दूसरी खबर जो पंजाब से है, वो का हेडलाइन है स्कूल फी हाइक 5 years ऑन, पेरेंट्स ट्रबल सीज नो एंड। ये ट्रिब्यून की रिपोर्ट है और ये कहती है, ahead of 2017 assembly elections, the issue of charging exorbitant fees by private schools had gained so much momentum that every political party had started wooing parents by promising that laws would be enacted to regulate schools. However, 5 years
later, parents feel that they were cheated and none of the political parties are serious to check the loot. Private schools and colleges enjoy support of the politicians. In fact, many of these institutions are owned by the politicians, said Angat Singh Gill, a parent. While the opponents had started cornering the government on the issue, the SAD BJP government had to make an announcement to form fee regulatory committees at a divisional level and enacted the Punjab Regulation of Fees of Unaided Educational Institutions Act 2016. However, due to lack of willpower on the part of the government to implement the regulatory laws, parents feel that they are still paying hefty fee and forced to buy books and uniform from the selected stores. एक और इंटरेस्टिंग चीज इसमें आ रही है. Then President of the now defunct Punjab Parents Association, Advocate M.K. Sharma, said the only alternate and viable check this open loot by private education institutions here is that the level of government institutions are improved. There is no doubt that we have seen improvement in the last few years. तो इसमें उन्होंने ये कहा है कि अभी जो इलेक्शंस आ रहे हैं इसके अंदर जो पॉलिटिशियंस हैं वो फीस हाइक को बात कर रहे हैं और 2016 का पंजाब रेगुलेशन ऑफ फी एंड अनएडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनने के बाद भी जो है उसका कोई खास इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, लूट जारी है. और एक और बात जो इसमें आई वो ये आई कि गवर्नमेंट स्कूल्स को ठीक होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही एक अल्टरनेटिव जो है प्राइवेट स्कूल्स का हो सकता है. तो अगर आप लूट को चेक करना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट स्कूल्स जो है वो इम्प्रूव करना पड़ेगा. ये नटशल में इसकी न्यूज़ है. अब मध्य प्रदेश की एक न्यूज़ है वेरी इंटरेस्टिंग. ये गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में है और वहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये रिपोर्ट कर रहा है मध्य प्रदेश स्कूल बोर्ड शॉक्स विथ ₹10,000 लेट एग्जाम फीस. एग्जाम फी ₹900, लेट फी ₹10,000 plus ₹900. No, we have not got any. The Xerox misplaced. This is indeed the fine Madhya Pradesh Board of Secondary Education is charging state board students who miss the exam fee date. The deadline this year was February 6. Times of India has learned that some children who have missed the date may miss the exam altogether because they cannot afford the fine. The government's argument is that they have set the late fees high so that the students pay up on time. Another student said he fears some of his friends may not be able to take the class 10 exam this year. There was no need for such a steep late fee. Students should be encouraged to take exam and such high fines may demoralize them, said Vikas Gupta, father of a class 12 student. तो ये कह रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो मध्य प्रदेश का एजुकेशन बोर्ड है उसने फीस एग्ज़ाम फीस तो 900 रुपये, लेकिन जो लेट फीस का है वो 10,000 रुपये उसके ऊपर. तो ये बड़ा शॉकिंग है पूरे के लिए. इसमें सवाल ये भी उठता है कि सरकारी स्कूल के अंदर जो सरकारी बच्चे स्कूलों में जाते हैं हम सब जानते हैं कि वो सब हमारे बैकवर्ड क्लासेस से हैं, गरीब लोग हैं, गरीबों के बच्चे हैं, आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं. तो वो इस गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, है ना. अब वो बच्चों से आप एग्ज़ाम फीस लेंगे और एग्ज़ाम फीस 900 रुपये लेंगे और अगर वो 900 रुपये टाइम से नहीं जमा करा पाए तो उसके ऊपर 10,000 रुपया जुर्माना लाएंगे तभी वो एग्ज़ाम दे पाएंगे. मुझे लगता है कि ये हमारे जो राइट टू एजुकेशन का जो मीनिंग होना चाहिए वो शायद मिल नहीं रहा है.
सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि जो बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनकी पूरी की पूरी फीस क्यों नहीं खत्म होती, उनको टोटली फ्री एजुकेशन क्यों नहीं मिलती, और जब टोटली एजुकेशन फ्री मिलनी है तो उसमें एग्जाम फी या लेट फी का सवाल कहां से उठता है। गवर्नमेंट स्कूल्स इस तरीके के अट्रैक्टिव होने चाहिए कि सारे बच्चे उसकी तरफ खिंचे, और कोई हालात ऐसा नहीं सरकार को पैदा करना चाहिए कि जो बच्चे पढ़ भी रहे हैं वो भी आगे ना बढ़ सके, क्योंकि वो उनके माता पिता जो है फीस या फीस के ऊपर जो लेट फीस है जो इस केस में 10,000 रुपए सरकार ने रखी वो नहीं दे पाए। तो अब हम फिर से एक बार दोबारा चीजों के ऊपर आते हैं कि इन सब चीजों से क्या निकल के आता है। एक मुद्दा तो आता है निजी स्कूल में अंदर फीस का, और अभी हम सब लोग जानते हैं कि अब स्कूल खुलने शुरू हो गए हैं देश भर में, और उम्मीद करते हैं कि जब अप्रैल में नया सेशन शुरू होगा तो फुल फ्लैक्स जैसे 2 साल पहले चल रहे थे वो स्कूल उसी तरीके से आएंगे। तो फी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और आप देख रहे हैं कि इधर आंध्र प्रदेश तेलंगाना में जो है पेरेंट्स कंप्लेंट कर रहे हैं कि 10,000 रुपया साल में फीस अभी बढ़ रही है, और वो नहीं देंगे तो उनके बच्चों को निकाल देंगे स्कूल से। तो ये फी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और अभी हमने देखा है कि कोविड के टाइम कितना पेरेंट्स कोर्टों के अंदर गया। पूरे मुझे लगता है कि शायद देश की कोई अदालत ऐसी नहीं होगी, हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, ये कि जहां पर ये फीस के मुद्दे नहीं उठाए गए। और अंत में यही हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, इस पीरियड में जो है आप 15% रिड्यूस्ड फी दे दो, बाकी आपको फीस जो है देनी पड़ेगी, मतलब 85% फीस जो है देनी पड़ेगी। और अब तो कोई बात ही नहीं, अब तो मुझे लगता है कि सबको पूरी ही फीस देनी पड़ेगी। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना, इसको हमें समझने की जरूरत है। ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो कमर्शलाइजेशन नहीं कर सकते, वो नो प्रॉफिटिंग के बेसिस पे चलते हैं, वो कम्युनिटी सर्विस है, वो फिलैंथ्रोपिक है। तो ये जो पैसा एक लूट के तौर पर लेते हैं, लूट है एक, ये अनजस्टिफाइड फीस है। तो अब ये तो बात ठीक है कि अगर मुझको अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है तो फीस तो देनी पड़ेगी, और फीस देने को कोई मना भी नहीं करता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फीस तो वही होगी ना जो जस्टिफाइड होगी। 2007 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि फीस जो है वो जस्टिफाइड होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी और स्कूल की अकाउंटेबिलिटी होगी, है। लेकिन अभी तो यही देखने को मिल रहा है कि सभी चीज जो है मिस है। और ये फी को रेगुलेट करने के लिए यकीनन हमको जो है एक कानून की जरूरत है, एक वैलिड कानून की जरूरत है। और अभी कुछ राज्यों ने कानून बनाए हैं, वो भी आपस में कंट्राडिक्टरी हैं, कुछ थोड़े से सही हैं, कुछ थोड़े से गलत हैं। तो हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आप सब लोगों को ये डिमांड करनी चाहिए, अगर आप रियली इसको रेगुलेट करना चाहते हैं फीस को, कि नेशनल लेवल के ऊपर एक फी रेगुलेशन एक्ट बनना चाहिए जो कि पूरे देश के सारे स्कूलों के ऊपर यूनिफॉर्मली जो है अप्लाई करें। और दूसरा, उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये होना चाहिए कि जो हमारे पेरेंट्स है ना, उनका 50% जो है ना, वो उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए स्कूल की मैनेजिंग कमेटी में। अगर ऐसा होता है तो आप सब यकीनन मानिए कि बहुत सारी समस्याओं से जो है ना आपको मुक्ति मिल सकती है। और जो शोषण है, जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है प्राइवेट स्कूलों के द्वारा, उस पर काफी रोक लग सकती है। एक और प्रॉब्लम जो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर है वो ये है कि वो लोग अपने जो एम्प्लॉइज हैं, टीचर्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, अभी तो बहुत सारे तो इन लोगों ने कोविड के टाइम नौकरी से ही निकाल दिए, लेकिन जो भी अभी हैं उनको जो है ना बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव टर्म्स के ऊपर रखा हुआ है। और उसका कारण ये है कि एक तो सिक्योरिटी ऑफ सर्विस नहीं है, फी जो उनको जो सैलरी मिलनी चाहिए वो रेगुलेटेड नहीं है, जो मनमानी आती है वो सरकार जो स्कूल्स हैं वो देते हैं। तो हमें उसके ऊपर भी एक नेशनल लॉ की हमने डिमांड करी थी, हमने प्राइम मिनिस्टर को भी लेटर लिखा था
कि एक जो है प्राइवेट स्कूल्स के जो टीचर्स और दूसरे एम्प्लॉइज हैं उनकी सिक्योरिटी ऑफ सर्विस के ऊपर एक लॉ बनाया जाए, जिससे कि टीचर या दूसरे एम्प्लॉई को ये डर ना हो कि मनमानी ढंग से जो है स्कूल उसको निकाल देगा। तो ये एक चीज है। दूसरा, हम अगर गवर्नमेंट स्कूल्स के ऊपर आते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल्स की अभी यह हालत है कि 10 लाख तो टीचर्स की वैकेंसीज कंट्री वाइड जो है वो पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है, टीचर्स की वैकेंसी भरी नहीं है मतलब। दूसरा ये कि हमने अभी आपको बताया कि ये हमने अभी यूपी, आपका राजस्थान, हरियाणा, पिछले 4-5 महीने के अंदर हमने बहुत सारे सरकारी स्कूलों को देखा है और उनकी हालत बहुत ही हॉरिबल है, बहुत ही अधिकतर। ये सैंपल है, मुझे लगता है कि लगभग सारे स्कूलों की हालत ऐसी खराब है जहां बच्चे डेंजरस स्कूलों में पढ़ रहे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है और आपका टॉयलेट ब्लॉक नहीं है और बच्चे अधिकतर दरी पे बैठे हुए हैं, फटी हुई दरी है, कोई वातावरण नहीं है। टीचर्स की बहुत कमी है, मतलब टीचर्स अगर 150-200 बच्चे हैं तो एक टीचर है और कई जगह तो टीचरलेस स्कूल है, बच्चे हैं टीचर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कैसे गवर्नमेंट स्कूल्स को आप जो है ठीक करेंगे। तो इसमें भी हमने एक चीज निकाली है, अभी हमने एक कैंपेन शुरू किया है और उसका एक नमूना ये है कि हमने झिरखा तहसील न्यूहू डिस्ट्रिक्ट के अंदर हरियाणा में हमने सिविल जज के यहाँ एक दीवानी दावा एक फादर की तरफ से डाला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरी लड़की जो है सरकारी स्कूल में पढ़ती है और वहां पर 6ठी, 7वीं, 8वीं 3 क्लासों के जो बच्चे 130 हैं और सिर्फ एक टीचर है। तो आप इनको डायरेक्शन दीजिए हैं कि ये तुरंत जो है टीचर वहां पर नियुक्त करें। तो अभी ये एक तरीके से हमने यहां से एक कैंपेन शुरू कर दिया है पूरे देश के अंदर और मैं समझता हूं कि अगर सरकारी ढांचा ठीक करना है, जो बहुत ही जरूरी है, इसके बगैर हमारा कोई मुक्ति नहीं मिलने वाली है, तो पेरेंट्स को जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं या जाने वाले हैं, मुझे लगता है कि उन सबको जो है निजी जो अदालत है, दीवानी अदालत है, वहां पे सूट फॉर मैंडेटरी इंजंक्शन फाइल करना चाहिए। उसके लिए पहले 1-2 महीने का नोटिस देना पड़ता है चीफ सेक्रेटरी को राज्य के, वो देकर फिर सिविल सूट डालकर। मुझे लगता है कि अगर देश भर में पेरेंट्स, जो हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ये सिलसिला चल रहा है, तो अगर ये चीज बढ़ती है तो इससे मुझे यकीनन है कि गवर्नमेंट स्कूल्स जो है वो इम्प्रूव करेंगे। एक और बात मैं गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में बताना चाहता हूं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है और बहुत सारे लोग इसलिए खुश हो जाते हैं कई बार कि सरकार ने एक नया तरीके का मॉडल स्कूल, संस्कृति स्कूल, एक्सीलेंट स्कूल जो है वो भी पैदा कर दिया है और सारा समस्या जो है हल हो जाएगी। वो बहुत बड़ा फ्रॉड है। देश के अंदर मैं आपको बताऊं आज की तारीख में कम से कम नहीं तो 35 से 40 तरीके के सरकारी सिस्टम के अंदर सरकारी पैसे से चलने वाले स्कूल्स हैं जिनका अलग अलग स्टेटस है, जो अलग अलग बच्चों को कैटर करते हैं। आपका देखा केंद्रीय विद्यालय है, क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे केंद्रीय विद्यालय में दाखिल हो जाए? लेकिन क्या हो सकते हैं, एक सीमित नंबर ही वहां पे दाखिल होते हैं और वो भी अगर आप उनके एडमिशन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं तो बाकी कहां जाएंगे? ऑर्डिनरी स्कूल के अंदर। अब दिल्ली को ले लो तो दिल्ली के अंदर ही कम से कम 6-7 लेयर्स ऑफ स्कूल्स हैं जिनको हम अनजस्टिफाइड, डिस्क्रिमिनेटरी, भेदभाव के स्कूल बोलते हैं। आप कैसे कर सकते हैं कि एक स्कूल के अंदर जो है एक बच्चे पे जो है साल भर में 10,000 रुपए खर्च करो, दूसरे स्कूल के अंदर उस जो स्कूल में पढ़ता है बच्चा उसके ऊपर 80,000 रुपए साल में खर्च करो? ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये आर्टिकल 14 और 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो कहते हैं समानता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, ये क्लियरली उसके खिलाफ है। तो ये जो सरकारें एक तरीके से जुमला क्रिएट करती हैं कि हमने एक नया स्कूल बना दिया है, ये संस्कृति स्कूल बना दिया है, अब सीबीएसई से अटैच हो जाएगा। वहां पानी पीने का स्कूल में इंतजाम नहीं है, आप सीबीएसई से अटैच करके लोगों को ये क्या समझा रहे हैं कि अब सारी समस्या हल हो जाएगी? आज भी कम से कम नहीं तो 10 करोड़ बच्चे स्कूल के सिस्टम से बाहर हैं। विकलांग 3 करोड़ के करीब विकलांग बच्चे जो स्कूल की उम्र के हैं वो स्कूल से बाहर हैं, स्कूल में है ही नहीं क्योंकि स्पेशल टीचर्स नहीं है आपके पास। तो फिर हम उसी बात पे आते हैं कि
इसको ठीक करने के लिए मुझे लगता है कि पेरेंट्स को अपने ऊपर लेना पड़ेगा, और वो पेरेंट्स जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं उनको नजदीक की अदालत, दीवानी अदालत का दरवाजा खड़खड़ाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो मैं आपको बताता हूं कि 6 महीने के अंदर जो है ना सरकारी स्कूलों का ढांचा जो है ना देश भर में बदलेगा, जो बहुत जरूरी है। अभी हम ये भी देख रहे हैं कि सरकारी स्कूलों के अंदर ही जो पोस्टें पड़ी हुई हैं खाली, उनको भर नहीं रहे हैं, और उसकी जगह जो है आपको शिक्षा मित्र, गेस्ट टीचर, कॉन्ट्रैक्ट टीचर, पूरे देश में इस तरीके के लाखों की तादाद में भर्ती किए हुए हैं। उसमें से बहुत सारे तो शायद क्वालिफाइड भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उनका आर्थिक रूप से शोषण सरकार करती है। जब आप 2,000 रुपया महीना देंगे उसको, टीचर को 5,000 रुपया देंगे, 10,000 रुपये में टीचर रखेंगे आप, हैं, और सालों से यही, तो कैसे वो उससे उम्मीद कर सकते हो कि वो पढ़ाएगा? आप रेगुलर टीचर क्यों नहीं भर्ती करते हैं? पहले दिन ही क्यों नहीं भर्ती करते हैं? और मैं समझता हूं कि जो हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर हैं करोड़ों की तादाद में, अगर वो स्कूलों में आते हैं तो आप अंदाजा करिए कि हमें कितने स्कूल और चाहिए, कितनी पोस्टें और चाहिए टीचर्स की, कितने और लोग उसमें जो है लगेंगे, और कितने लोगों को लाइवलीहुड बनेगा, नए स्कूल बनेंगे, नई बसें लगेंगी, दुनिया भर की बहुत सारी चीजें हैं। तो इसलिए हमें ये देखना है कि देश का हर एक बच्चा स्कूल में जाए, और उसके लिए पूरी व्यवस्था जो है वो सरकार करे। अभी आपने देखा था, पीछे मैंने एक केस का जिक्र किया था जिसके अंदर जो है वो स्टेरिलाइजेशन किया था एक महिला का दूसरे 2 बच्चे के बाद, और उसके बाद वो स्टेरिलाइजेशन फेल हो गया और उसने तीसरे बच्चे को जन्म दिया। जब तीसरे को जन्म दिया तो उसने सरकार से, तमिलनाडु सरकार से जो है ये मांगा कि मुझे 10 लाख रुपए जो है मुआवजा दिया जाए, और वो मामला हाईकोर्ट में आया, और हाईकोर्ट ने तो उसको 3 लाख रुपया दिलाया मुआवजा महिला को, ये कहकर कि ये मेडिकल निग्लिजेंस है। एक बार स्टेरिलाइज्ड अगर हो जाता है तो वो बच्चा पैदा, अगर कंसीव करती है और बच्चा पैदा होता है, तो ये एक तरीके से सरकार की निग्लिजेंस है, सरकार की कमी है ये, और मेडिकल निग्लिजेंस पे उसको 3 लाख दिए। लेकिन जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी, वो उन्होंने उस बच्चे को, जो तीसरा बच्चा था जिसको अनवांटेड बच्चा माना है, उस बच्चे के लिए उन्होंने कहा कि जब ये 5 साल का होगा तो ये सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो उस बच्चे को किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करेंगे, और उसका पूरा खर्चा 21 साल तक जो है वो सरकार उठाएगी, सारा ट्यूशन फीस वगैरह वगैरह। और इसके अलावा कोर्ट ने ये ऑर्डर करा कि 10,000 रुपया प्रति माह सरकार जो है उस बच्चे को देगी 21 साल तक उसकी पालन पोषण के लिए। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आ रही है, और ये इन टोटलिटी ये दिखा रही है कि अगर हमारे पेरेंट्स हैं कोर्टों का इस्तेमाल करते हैं अपने राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए, और ये आसान है। सिविल कोर्ट जो आपके स्कूल के नजदीक, घर के नजदीक दीवानी अदालत है, वहां पर आप सूट फॉर मैंडेटरी इंजंक्शन कर दिए, उसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, और उसमें वकील हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर वकील नहीं भी हो तो पेरेंट खुद जो है वो उसमें खड़े हो सकते हैं केस में, और कोर्ट मुझे लगता है कि उसकी पूरी मदद करेगी। और इसमें आप मेरे से भी मदद ले सकते हैं। मेरा नंबर भी आप नोट कर सकते हैं, 9811101923। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, 9811101923। आप अगर इंटरेस्टेड है, आप देखते हैं कि आपके बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है और सरकारी स्कूल जो है वो जो सुविधाएं वहां होनी चाहिए कानूनन तौर पर वो सुविधाएं नहीं है, तो आप केस डालना चाहते हैं तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपका पूरा केस बनवा दूंगा, आपको पूरा गाइड कर दूंगा मैं, और अगर 1% कहीं ऐसी जरूरत पड़ी तो मैं खुद भी आपके लिए कोर्ट में जो है पेश हो सकता हूं। तो ये एक चीज मैं आप लोगों से आज की तारीख में करना चाहता हूं कि हमें जो है अब 2022 और 23 का सेशन शुरू हो रहा है, तो इसमें एक तरफ हमें प्राइवेट स्कूल की जो मनमानी है उसको प्रॉपर लॉ
फी रेगुलेशन लॉज से हमें उसको फीस को रेगुलेट करना चाहिए। और दूसरा जो उसका अल्टरनेटिव है, जैसे अभी न्यूज पे भी पढ़ रहे थे कि एक पेरेंट कह रहा है कि अल्टरनेटिव जो है वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट स्कूल की इंप्रूवमेंट है, तो हमें गवर्नमेंट स्कूल को भी इंप्रूव करना है। और वो मैंने बताया आपको कि जब पेरेंट्स इसके ऊपर आमादा हो जाएगा है कि मुझे ये बदलना है, तो ये बदलेगा। और ये अगर हमारे सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, अच्छी पढ़ाई मिलती है, क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, तभी तो देश बढ़ेगा ना हमारा। थैंक यू।